नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑर्थोपेडिक एंड एम्पुटेशन सर्जरी इन लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव टू एक्सपर्ट्स। टू माय एक्सट्रीम लेफ्ट इज मिस्टर संदीप शुक्ला who is in prosthetics and orthotics department and also manager in marketing and business development in Indolite India Limited. And to my other left is Mr. Gautam Jain, who is head at clinical services in the same company, that is Endolite India Limited. तो ये दोनों एक्सपर्ट हमें आज के जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एम्पुटेशन सर्जरीज के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी इस रिगार्ड में उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी व्यूज़ अपने शेयर करना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चंस एंड शेयर योर व्यूज़ विद आवर एक्सपर्ट्स। आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। वेलकम सर। सर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑर्थोपेडिक एंड एम्पुटेशन सर्जरी मेनली इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, तो जैसे इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं ऑर्थोपेडिक एंड एम्पुटेशन। बेसिकली इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? एम्पुटेशन का बेसिक मतलब है एनी रिमूवल ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब, means extremity complete removal. As you can see in the slide, a complete removal of the limb segment is called amputation. So I'll be discussing basically about the aim of amputation, the types of amputation and ideal condition for amputation for fitment of artificial limb. As you can see in the slide about amputation surgery, so in olden days the amputation was the life-saving amputation, and in the recent times we call it's for improvement of quality of life. Okay, some of the known names to be renowned names in this field is Mr. Dr. Ambrose, Symes, Choparts, Guillotin and Dr. Robinson, who have developed amputation surgery in the world. Okay, some of the nomenclatures which I would like to discuss before going to the topic, that is, earlier we used to call them hip disarticulation, and now we call it as hip disarticulation. Through hip and now hip disarticulation. Above knee now we call transfemoral. Through knee we have now knee disarticulation. Below knee now we call it as transtibial. These are the range of lower extremity amputation. Okay, what is amputation and how many types of amputations are there? So we have Guillotine type of amputation, we have flap, we have myoplasty, we have osteoplasty and osteomyoplasty. I'll go into the detail of these amputation now. So for the first, as you can see, is guillotine. So guillotine is a type of amputation. It is basically for life saving, as the amputation done at the same level. It is chopped off straight at the same level. That is guillotine. It is basically the stump becomes very conical. In this case, the terminal end is scary, and it is basically for life saving, or if the limb is stuck somewhere during accident or any calamity, it is stuck. So for life saving, for removal of the body outside, the person outside, this type of amputation is done. Second is the flap technique, where you have the facial flaps of the skin overlapping the muscles. So stump, in this condition the stump becomes very conical, and the indication is basically again life saving, is because of cancer, you can say, because n number of reasons you have to remove the limb part. So we do is life saving, and important is poor general condition of the patient has to be understood before doing this type of surgery. सर, जैसे ये आपने एम्पुटेशन के टाइप्स हम डिस्कस करें, आपने फ्लैप का बताया, इसमें जैसे स्किन का जो आपने बताया कि इसमें इस तरह के एम्पुटेशन होते हैं, फेशियल टिश्यू। हाँ, तो आप कुछ एग्जांपल लेके थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? Next topic we have that explanation which will be covering in the next topic. And like we are covering the other type of amputation, like we have myoplasty amputation, where the muscle group is sutured at the end of the bone. It's muscle to muscle, we suture the stump at the end of the bone, but disadvantage of this is stump becomes very bulbous.
and the muscle over the stump and is too much muscles gets collected over the stump. Then we have osteoplasty, where the muscles are sutured at the end of the bone. Means this is one of type of the surgery where the muscles are sutured at the end of the bone. जी. The stump becomes a little conical, and you end up having a bony terminal end. And last, well, most important type of amputation which is commonly practiced is osteomyoplasty. Condition where the muscle to muscle and covered at the end of the bone, it end up having a good conical shaped stump, and you have good soft tissue padding at the end of the stump, which is the most commonest amputation surgery done nowadays. Sandeep will cover the causes of amputation. What are the common causes of amputation? Why amputation takes place? तो जैसे सर आपने बताया कि एम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब और इसका कैसे चेंज हुआ, जो हम थॉट प्रोसेस कहते हैं कि अर्लियर इट वाज थॉट टू सेव द लाइफ, नाउ इन रिसेंट सेंचुरी इट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. और बेसिकली कितनी तरह के एम्प्यूटेशंस हो सकते हैं, जैसे आपने बताया किसकी वजह से एम्पुटेशन किसकी वजह से एम्प्यूटेशन हो सकते हैं, और इसके बारे में मतलब क्यों हो सकते हैं, कॉजेस आप बताएंगे. जी. जी. See, there are various causes of amputation. First one is vascular cause. Then I'll elaborate later on. Second one is traumatic, then inflammatory, then congenital, then neoplastic means sarcoma. Then there are miscellaneous causes. In vascular causes, what happen is there is bad flow of blood. It's not of means the blood is not flowing properly at the distal end of the body, so that makes the condition like this thing. Then in traumatic cause, if you see in the picture, means the child is there, उसके दोनों पाँव में ग्राफ्ट हो रखा है. That is the cause of traumata or traumatic amputation. Basically, a train accident. This amputation was done. So this is one of the cause. And मतलब like किसी भी ट्रॉमा की वजह से, कोई एक्सीडेंट या इंजरी की वजह like you can से. see the slide. One of the cause of amputation can be this also, or any accident. Basically, Any type of trauma leads to amputation. Is मतलब कोई भी एक्सीडेंट है या कोई भी इंजरी हुई है तो तो उसकी उसकी वजह वजह से से like the end portion is crushed. Yeah. Now the infection starts spreading. जी. To save the life, again amputation has to be done, and finally to improve the life. Yes. Then third one is infection. If you see the finger, इसमें पूरा infection हो गया है, that leads to amputation. We don't have any option to save this thing. Then for that we have to amputate the hand. And then third one, and then the next one is a congenital one. Means in this case, the amputation is this problem occurs at the time of birth. Is when the hand is totally. Means if you see the condition, three conditions. There are three conditions where the hand is not here. This is all because of the Since birth, you can say congenital means since childhood it is there, and to improve the quality of life, so this amputation has to be done for finally improve the life of the मतलब child. सिंस कोई भी congenital Anomaly की वजह से वैसे हो सकता है. To get the right shape for fitment of artificial leg, आपको amputation करना पड़ सकता है. Then fourth one is this thing neoplastic means sarcoma. Here the case is there. We have to do amputation on that cases. And then You can fungal infection is there, elephantiasis is there. I said was improve the life. So this condition you amputate and you improve the life of the patient. It doesn't spread. He can live for a longer period. Mr. Gautam will elaborate this point. As a professional, we would like to have an ideal stump for fitment of our processes. If the stump condition is good, we can go for a good artificial limb fitment for lower limb processes. So as indicated in this slide is, for perfect prosthetic fitting, a perfect stump is needed. Okay, in other words, the optimal prosthetic fitting is best possible when the stump is ideal condition. So what is an ideal condition of a stump? And for whom it is ideal? It is basically ideal for the amputee who is going to use an artificial limb after amputation, as the topic is. So ideal stump, there are two types of stump. One is the ischemic stump and one is the non-ischemic stump. Ischemic stump indicates when it is the blood circulation is very poor. So that is called ischemic stump, and non-ischemic is
when the blood circulation is good, which is ideal for any prosthetic fitment. तो सर जैसे आपने ये बताया कि ब्लड सप्लाई ठीक है नॉन इस्चेमिक में, क्या इसमें मतलब कुछ एग्जांपल्स जैसे अगर इंजरी होती है या एक्सीडेंट्स होते हैं तो उस केस में हम क्या देख सकते हैं? हाँ, अगेन वैस्कुलर कॉज में इस्चेमिक स्टम्प बनते हैं, वेयर यू हैव व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ द वेसल्स आर रिस्ट्रिक्टेड. सो वैस्कुलर कॉज में यू गेट इज इस्चेमिक स्टम्प. एंड ट्रोमा, if you are non-diabetic and you are traumatic amputation due to trauma, then you have a stump which is an ischemic stump where the circulation is good but the limb has to be removed. जैसे आपने डायबिटीज की बात करी तो again, इसमें diabetes can be ischemic because you have swelling and the blood vessels get constrained and the circulation is something like the nutrition is not going to the end of the stump. The food which is needed for the body to grow, it is not growing. So you have to be careful in ischemic stump. So it can go into the any part of the body. It is basically extremity. It can be any part of the body, but it is basically what we are talking about is lower limbs. So the subject is lower limbs. So we are talking about lower limbs right now. तो जैसे लोअर लिम्ब की बात करी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों लोअर लिम्स में, इट कैन बी यूनिलेटरल It can be unilateral or bilateral depending on the condition. जी. Okay, we also have a comparison of below knee versus above knee in amputation. If a choice is given to the surgeon, whether it is need to be done a below knee or an above knee, it is always better to have a below knee stump because you have saved the knee joint for movement and function, which is always better. Cost wise it is better, function wise it is better, and for better rehabilitation it is better. Scar and graft, as it should always be eliminated at the time of surgery. Even you have to go for a slightly upper end of surgery, but the skin graft should always be avoided. सर जैसे ये आपने अबव नी और बिलो नी के बारे में बताया, जैसे बिलो नी है तो वो इजीली एम्प्यूटेड हो सकती है. अगर जैसे अबव नी है, बिलो मतलब नी के ऊपर वाला जो पार्ट है सिर्फ उसी में प्रॉब्लम है, नीचे ठीक है? नहीं, नॉर्मली इट स्टार्ट फ्रॉम द एंड, मींस फुट से स्टार्ट होके ऊपर आता है. सो अगेन कॉजेज ऑफ एम्पुटेशन देख के कि इन्फेक्शन था या वैस्कुलर था या ट्रोमा था, कि अगर इट इज मोर ऑफ इन्फेक्शन तो टिल द टाइम इन्फेक्शन जहाँ तक है वहाँ तक तो रिमूव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल स्प्रेड and go to the spine and finally nervous system को damage करके life saving हो जाता है. It is again a life saving amputation की वजह से. तो जहाँ तक इन्फेक्शन है वहाँ तक amputation करना ही पड़ेगा. You cannot save ये कि knee remove कर दिया and lower limb save कर लिया, वो possibility नहीं है. मतलब इन्फेक्शन नीचे एक्सट्रीमिटी से ही स्टार्ट होता है. ये नी में भी अगर है तो you cannot save the foot and the thigh section कि सिर्फ knee remove कर दिया, not possible. तो पूरा एक्सट्रीमिटी रिमूव करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग. You have nowadays total knee replacement हो जाते हैं, but अगर इन्फेक्शन देखा जाए तो again we come back to same topics, causes of amputation. After amputation, Sandeep, would like to cover this? See, we have to see various aspects to get an ideal stump. First one is length of the stump, second is scar, and third one is joint movement, then neuroma and spur, then oedema, then terminal end and musculature. In ideal length, see we have if you see the hip disarticulation process, we have to say 3 points, means head, neck and greater trochanter, to get the proper weight of the leg. Means in next slide, if you save the head of the femur and greater trochanter, we'll get the good surface bearing socket. We'll make the good surface bearing socket. In transfemoral, what is there is we have to give 15 centimeter of clearance above the knee joint, so that we can fit the best possible knee joint we have. We have variety. In market there are variety of knee joints, so we have to give certain degree of. What I'll just add on to this is what happens is earlier days what happened was there was only one limited option available, niche in assembly, but nowadays for after surgery, amputation surgery, a vast variety of hardware, we call it as prosthetic fitment, are available based on the patient activity level, need, his budget. Many features are there. So ideally what should be the length, what we are discussing right now is we should have at least minimum of 15 centimeter clearance from above the knee joint to get all the options ready for the amputee.
who is तो is this the standard measurements, मतलब ये हमेशा follow करे जाना? Ideally is that, It's better if you follow this thing. Otherwise, but there are other combinations available that if you go for a knee disarticulation, you have another options available. But ideally, after surgery, if given a choice to the surgeon, कि from where to amputate, he has an option of 2-3 inches up and down. Ideally, if he can create a 15 centimeters clearance from the knee joint, it will better for the life for the amputee who is finally going to use an artificial limb. That is why this indication has been given. So, a lot of options for hardware, we call it, from above the knee joint, as you can see in the slide. The clearance given is 15 centimeter for options of hardware. We call it as hardware. You can see an above knee amputee, nice amputation done, bone length 17 centimeters plus a centimeter or little more than that soft padding, and then a 15 centimeter clearance. So that lot of options amputee has based on his activity to go for an artificial limb fitment. If you see this condition, there is no clearance at all. This is the knee level, this is the stump level, hardly a space to fit any knee joint. So this particular case will have problems in deciding on the hardware, the prosthetic component for fitment. Do these measurements affect depending on the individual, like in child or adult, or in obese person or in thin build person? Yes, it does affect. Ideally, the longer the better, but then you should have minimum fitting space for the knee joint. An older amputee would like to go for a stabilized knee joint. He wants stability at the time of heel strike. Younger amputee wants a dynamic knee joint. Child amputee again wants a dynamic knee joint which is long lasting, which is adjustable because he is going to grow. So based on that we have to decide our prescription, and based on that the doctor needs to decide from where to amputate. It's actually a rehabilitation team who decides from where to amputate, so that post amputation fitment and his rehabilitation, finally we are talking about rehabilitation. Post operative rehabilitation is perfect for the amputee who has been, the amputation has been done for. Again, the second level is the through the knee. Again, it's not a very popular surgery, but you have advantages over above knee. You get better proprioceptive sensation. That means the feeling of limb is always there, where it is in space. Means if he lands, he knows it's landed. Otherwise, sensations are not there in above knee. But then disadvantage, you have poor cosmesis because of the knee joint limitations are there. You add on to the length of the knee joint sometimes doesn't level artificial one and the normal one. So there is a small comparison of above knee. Sandeep, would you like to? See, in above knee, what Mr. Gautam said is we'll get the better cosmesis because we don't have any bulbous structure at the distal end. Then we have a choice of knee mechanism. Then we have variety of joints. Then we can choose whatever we want on that particular because of the fitting length. Then third one is good function. Means if we have variety of knee joint, we will get the good function. Whereas in this knee disarticulation process, we have poor cosmetic, as I said. Then we have less choices. There are 3-4 options are there on the market. Then we have function is obviously better function because of the long lever arm. Yeah. The longer as we study mechanics, the longer the lever arm, the better, easier for the amputee to use the artificial limb. So for that point of view, it says better function. सर जैसे यहाँ डिफरेंसेस हैं, आपने बताया नी मैकेनिज्म के बारे में, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस की व्हाट इज द नी मैकेनिज्म? हाँ, knee mechanism means you have different options based on the activity of the amputee, which option he wants to go for. If he's a athlete runner, he would like to go for a hydraulic knee joint. If he's a businessman or a young lady who would like to have an ideal walking pattern synchronized, he will go for a microprocessor based knee joint. Somebody who wants an old amputee diabetic who cannot control the knee joint would go for a locked knee joint. And each knee joint has got a certain fitting space. So that's why, as we said, is knee joint options are there, good options. Depending on the patient need, we can choose. But in knee disarticulation, in contrast, you have only very limited option because of the fitting space. As we showed in the earlier slide, that you have to have a clearance of 15 for any knee joint. But for knee disarticulation, as you don't have space, so the choice of the knee joint gets reduced. So it depends on the requirements of the individual के what he wants. Yes. और मतलब
ये भी देखते हैं कि प्रोफेशनली उसको कितना Which जरूरत activity he wants to go for, which Hmm. profession he is finally going to. He is an architect. He is going to go on sites. है जी. So he would like to go for a different knee joint. फंक्शंस भी देखते हैं उनके क्या क्या एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकते हैं. There are various तो मतलब aspects. उनके जो भी स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया होते हैं और जो भी मतलब वो मैच करने सारे पड़ते हैं. parameters Patient देखते हैं. requirement and the prosthetic which can output can give, वो match करके the ideal prescription given to the patient. जी. Yes. Again we come to now third category is after knee side is the below knee. We have two options in this as ischemic and non-ischemic. As we discussed earlier, ischemic because of poor circulation, ideally it should not be kept very long. So an appropriate length 12 to 13 centimeter is good for ischemic limb. And for non-ischemic, as you have a good circulation, there is no problem, vascular problem, you can go for a longer stump. The longer we go, the better lever arm and the weight bearing area increases. So the comfort increases. तो मतलब अगर कंपेयर किया जाए इस्चेमिक और नॉन इस्चेमिक में तो नॉन इस्चेमिक इज बेटर. Non-ischemic is always better because of the circulation is good. The nutrition which is supposed to go at the end of the extremity is going normally. Ischemic it is restricted. So we ideally have a shorter stump. But non-ischemic you can have a better pressure distribution because it is overall bigger area, overall distribution. The patient doesn't find the pinch. It feels like more cushioning. Better feedback he gets because more skin is getting in contact with the socket. So you get better feedback. Longer lever arm. Mechanic says longer the lever arm, less effort the amputee has to put in for using an artificial leg. Better comfort and more comfort. सर जैसे अभी हमने बात की ब्लड फ्लो मतलब जो ब्लड प्रेशर है प्रॉब्लम हो जाती है इस्चेमिक में. अगर जैसे जो बेसिकली हम लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं अगर उसमें ब्लड फ्लो ठीक नहीं है तो क्या ये ऊपर अपर एक्सट्रीमिटी या कुछ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है. अफेक्ट कर सकता है. डायबिटिक पेशेंट है, दे हैव टू बी केयरफुल कि उनको कोई वुंड ना हो. एक्सट्रीम डायबिटीज आई एम सेइंग. कंट्रोल डायबिटीज ओके, जो डाइट से कंट्रोल कर लेते हैं या मॉर्निंग वॉक से कंट्रोल कर लेते हैं, इट्स ओके फॉर देम. बट जो एक्सट्रीम केस जो इंसुलिन लेते हैं, दे हैव टू बी केयरफुल कि इफ दे गेट हर्ट, सो द बेस्ट वे ऑफ हीलिंग दैट इज टू गिव न्यूट्रिशन. बट इफ द न्यूट्रिशन इज रिस्ट्रिक्टेड, so it will not heal fast, and then the cause of amputation becomes infection. As it goes into the blood vessels, it starts spreading. So for life saving, you have to amputate it. It doesn't spread. That's why you keep it little openly for initial few stages. See from where the maximum remove the infection totally, and finally close the stump. So it can also lead to the amputation of the other parts, other Yes, extremity as well. definitely. So ischemic patient means diabetic patient or other vascular case, you have to be careful. So it's very risky in ischemic patients. Right. You end up lack of nutrition, you end up like an open wound. You have to go for a revision surgery and again identify ki from till which level the amputation has to be done because maximum removal of the infection has to be removed. Then again we come to the length of the tibia bone. It is somewhere close to an average. It is around 35 to 40 centimeters. For ischemic we have to have 2/3 length of the tibia, and for non-ischemic half of tibia is ideal. Longer is always not very good because the longer we go, again the hardware, the system problem starts. Less mechanism option. You cannot go for a good quality ankle joint or a knee joint. So like we have different orthopedic conditions. If we talk about one orthopedic condition is bone tuberculosis. तो जैसे कई आई हैव सीन अ पेशेंट मतलब अगर बोन ट्यूबरक्लोसिस है तो वीकनेस तो होती है बॉडी में, साथ के साथ जैसे लाइक उनका शोल्डर स्वेलिंग हो जाता है और वो बिगर इन साइज हो जाता है. तो उस केस में क्या एम्पुटेशन करना होता है या क्या ऑपरेशन? इट डिपेंड कि अब ट्यूबरक्लोसिस किस लेवल तक पहुंच गए. देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. इफ डिटेक्टेड इन अर्लियर स्टेजेस तो मेडिकेशन से ठीक हो जाता है. इंटरमीडिएट स्टेजेस पार्टली सर्जरी, सीमेंट प्लांटिंग, वो सब करके यू रिमूव द इन्फेक्टेड पार्ट एंड यू कैन गो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ दोज पार्ट्स. एंड बट एक्सट्रीम केसेस में इट इज पॉसिबल कि यू आर टॉकिंग अबाउट ट्यूबरक्लोसिस बट एम्पुटेशन टॉक्स अबाउट सार्कोमा. इफ डिटेक्टेड इन अर्लियर स्टेजेस कीमोथेरेपी से रिमूव हो सकता है जी. और इनिशियल सर्जरी जो ट्यूमर पार्ट है इट कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड
बिफोर इट स्प्रेड्स. एंड थर्ड स्टेज में जब वो स्प्रेड हो जाता है, देन यू एम्पुटेट and then go for chemotherapy that it all the infected cells are dead. Chemotherapy का basic function is सारे infected cells को dead करना. So level again category wise मतलब अगर जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है तो उस पार्ट तक हम रोके ताकि वो और आगे ना बढ़े, इसलिए वहां तक लाइफ सेविंग एम्पुटेशन हो गया. एंड देन फाइनली इम्प्रूव, कीमोथेरेपी नहीं करनी पड़ेगी बार बार, बिकॉज कीमोथेरेपी, वन कीमोथेरेपी लेट्स लॉट ऑफ एक्सर्शन. आफ्टर 2 days तक द पेशेंट इज वेरी वीक आफ्टर दैट. एंड कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं हेयर लॉस, वीकनेस. एंड देन कीमोथेरेपी नहीं करेंगे तो फिर इन्फेक्शन स्प्रेड के चांसेस हैं. तो ऑलवेज एवरीथिंग इन ऑल केसेस अर्लियर इज ऑलवेज बेटर. प्रिवेंशन पहले करना है उसके होने से पहले. Okay, another small condition is if it is a very short balloon stump. So ideally what you have doctor suggests is the fibula bone, if you can see the slide, the fibula bone should be completely removed. It should not be left there. That is because you get, if you don't remove it, what you get is a bony prominence there, which is always going to give problems at the time of fitment. Sandeep, about the scar. See, in scar we have to see various aspects. It should be supple, non-tender, and in transferable cases it should not be on the posterior sides. Otherwise, when the patient walks with artificial limb, it strikes when the heel strike. Patient strikes his heel. And in knee desart, again, it should not be on the posterior. Same problem it occurs. Whereas in case of transtibal cases, it should not be on the anterior aspect. Otherwise, when the patient strike his heel, the problem will create at the distal anterior end. So that will create the problem, and there should be no terminal scar at the distal end. So that is, these are the various issues that we have to keep in our mind. Transtibial, the bone is very close to the skin, and it is anteriorly placed. So that's why we avoid anterior scar at a time of ballooning. सर जैसे आपने अभी तक बताया कि एम्प्यूटेशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द एम्प्यूटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स या उनका जो भी नीड्स हैं उनके बेसिस पे हम किस तरह की एम्प्यूटेशन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और किस तरह के हमें पैरामीटर्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आइडियल स्टम्प के. तो ये हमारे एक्सपर्ट ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी. बाकी का सेशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे. दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू. This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू. जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person.
The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। Welcome back to our discussion where we're discussing about the different types of amputation and their causes with our experts. Let's continue this discussion with our experts. सर, जैसे ब्रेक में जाने से पहले हमने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स, पैरामीटर्स और कॉजेज़ के बारे में बात करी, तो इसके आगे आप क्या बताना चाहेंगे? अभी जैसे हमने लास्ट ब्रेक से पहले हम लोग स्कार के बारे में बात कर रहे थे, तो स्कार मैनेजमेंट के बारे में एंड आइडियल स्टम्प उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट व्हाट इज़ द पैरामीटर्स ऑफ आइडियल स्टम्प, जॉइंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सर्जिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, बोन, मतलब वो सब अभी डिस्कस करेंगे जी। जैसे अभी हमने स्कार के बारे में बात किया था कि इट शुड बी सपल, इस मोबाइल होना चाहिए, हिलते रहना चाहिए, नॉन टेंडर होना चाहिए कि बोन के साथ स्टिक नहीं होना चाहिए, उसको मोबाइल होना चाहिए, सो दैट आफ्टर वेयरिंग एन आर्टिफिशियल लिम्ब उसको प्रॉब्लम ना हो। अब नी में कहाँ होना चाहिए, पोस्टीरियर नहीं होना चाहिए, एंटीरियर ठीक है,
नी डिसहार्ट में पोस्टीरियर नहीं होना चाहिए एंड बिलो नी में एंटीरियर नहीं होना चाहिए. आइडियली इट शुड बी डिस्टली, नीचे एंड में होना चाहिए, सो दैट कोई भी प्रोस्थेटिक फिटमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो जाए. सर जैसे आप स्कार में आपने बताया कि आर्टिफिशियल लिम्ब पहनने के बाद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि आर्टिफिशियल लिम्ब पहनने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी स्कार डेवलप हो सकता है. हाँ, हो सकता है. अगर प्रोस्थेटिक फिटमेंट ठीक से नहीं हुई है, या फिर कई बार क्या होता है कि नया स्टंप है तो स्वेलिंग है, एंड उसके बाद जब एम्पुटेशन के बाद जब उसने आर्टिफिशियल लिम्ब पहनना शुरू किया है तो उसका स्वेलिंग कम हो गया है, तो पंपिंग एक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन हो गया. तो इट इज ऑल रिलेटेड. तो प्रोस्थेटिक फिटमेंट अच्छी करनी है तो उससे स्कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी. तो आइडियल स्टंप के अदर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे. द अदर कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल स्टंप लाइक जॉइंट मूवमेंट, पूरा जॉइंट मूवमेंट होना चाहिए, पूरा जॉइंट मूवमेंट होना चाहिए, न्यूरोमा होना और स्कार मिनिमम होना चाहिए, एडिमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टर्मिनल एंड शुड बी सॉफ्ट पैडेड होना चाहिए, मस्कुलेचर अच्छा होना चाहिए फॉर मूवमेंट, एंड इट शुड बी कोई पेन नहीं होना चाहिए स्टंप में. देयर शुड नॉट बी एनी पेन इन द स्टंप, दैट वे. सो बेसिकली अभी जॉइंट मूवमेंट के अगर बारे में बात करें तो 50% ऑफ द एम्पुटीज आर हैविंग जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स बिकॉज वो पोस्ट ऑपरेटिव फिटमेंट सर्जरी के बाद केयर नहीं लेते हैं. तो 50% ऑफ द ऑल एम्पुटीज को कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, एंड 75% उसमें से एक्सटेंशन रजिस्ट नहीं कर पाते हैं. मीन्स द फ्री मूवमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं आफ्टर सर्जरी, जो बिफोर सर्जरी पॉसिबल होता है, अगर केयर नहीं लेते हैं जॉइंट मूवमेंट से रिलेशन, तो वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. एंड 25% ऑफ एम्पुटीज अपने स्टंप के नीचे पिलो रख लेते हैं, तो उससे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है. उनको बेसिकली स्ट्रेच करके सीधा रखना है, तो वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है, तो फिटमेंट में प्रॉब्लम आती है बाद में उनको. मतलब कॉन्टिन्यूअसली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इफ दे आर पुटिंग देयर लिम्ब इन वन मूवमेंट ओनली, हाँ, तो उससे टाइटनेस हो in one जाती है. position only, that can lead to the development of contracture. Contracture, yes. And any contracture is bad for artificial limb fitment. कोई भी contracture अगर है तो artificial limb fitment में प्रॉब्लम ही करेगा. सर जैसे चोट लग जाती है, जैसे नेल कील जो होती है उससे, कई बार जैसे जो लोहे की चीज़ होती है आयरन की, फिर कहते हैं कि इसके बाद टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है. अगर किसी अवेयरनेस नहीं है, मान लीजिए किसी फैमिली में, तो उन्होंने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें भी इन्फेक्शन इतना बढ़ जाए कि एम्पुटेशन हो सकता है? इट इज एक्चुअली अ फॉरेन बॉडी जिसने ह्यूमन बॉडी को पियर्स किया है, एंड फॉरेन बॉडी अगर इन्फेक्टेड है तो ब्लड से कांटेक्ट में आके वो ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, एंड वो इन्फेक्टेड है तो ब्लड, उस एरिया का ब्लड इन्फेक्ट होगा एंड वो पास ऑन करता है दूसरे एरियाज में. तो इसीलिए इट्स एन एंटीबायोटिक टाइप ऑफ थिंग कि आप टेटनस का इंजेक्शन लगा लीजिए सो दैट इन्फेक्शन ना फैले एट दैट पर्टिकुलर एरिया. और जैसे बोलते हैं कि विद इन 6 months लेना चाहिए या कुछ ऐसा, किसी भी उसका. कई बार क्या होता है कि नॉर्मल नेल या नॉर्मल स्क्रैच को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं. इट इज एक्चुअली जब तक कोई प्रॉब्लम में नहीं आता उसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है. तो इसलिए कई बार कहते हैं कि हाँ 6 months to 1 year में एक बार ले लेना चाहिए, स्पेशली चाइल्डहुड एज में, जब लोग पार्क में खेल रहे हैं, स्विंग्स में जा रहे हैं, जहाँ रस्टेड पार्ट है, बस में जा रहे हैं, रस्टेड पार्ट है, स्पेशली रस्टेड पार्ट से तो केयरफुल रहना ही पड़ता है, सो दैट उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इट इज, और ड्यूरेशन जो फिक्स की जाती है किसी एंटीबायोटिक की, जैसे एग्जाम किया हमने कि 6 months है, तो वो इसीलिए डिसाइड की जाती है कि 6 months के बाद जो फ्रीक्वेंट मतलब इन्फेक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है. उसका डोसेज का इफेक्टिवनेस 6 months रहता है, इसीलिए उसको टाइम पीरियड फिक्स ही किया जाता है. कई लोग जैसे स्वेलिंग आ गई हाथ में तो एंटीबायोटिक डोज दे दिया फॉर 3 days ड्यूरेशन के लिए, सम mg का ड्यूरेशन दे दिया, तो 3 days इज द कंप्लीट डोज टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ डिसइंफेक्शन. तो टाइम पीरियड इन्फेक्शन टाइम वो डोसेज टाइम डिसाइड करने के लिए दिया जाता है, इसलिए वो इन्फेक्शन के टाइम दिया जाता है. अभी हम लोग फिक्स फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर की बात कर रहे थे, तो अबव नी में बहुत चांसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्चर आने के लिए. तो आइडियली उसको फिजियोथेरेपी से कंसर्न करना चाहिए इनिशियली, बट फिजियोथेरेपी सारी एक्सरसाइज नहीं करवा सकता, उसको खुद से सीख के ही हैज टू डू इट और शी हैज टू डू इट हिमसेल्फ एट होम टू रिमूव ऑल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्चर्स. बेसिकली फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है जो फिजियोथेरेपी से, और कई बार अगर एक्सट्रीम केस में चली जाती है तो सर्जरी करके भी कॉन्ट्रैक्चर रिमूव करना पड़ता है कि आपका टाइटनेस हो गया है एंड स्ट्रेच करके भी नहीं जा रहा, सो दे रिमूव द टेंडन एंड उसको बाद में उसको वो किया जाता है.
सर जैसे अभी आपने बताया कि मतलब कैसे कैसे हम फॉलो कर सकते हैं ये डिफरेंट जो टाइप्स के हम देख रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं साथ ही साथ एम्पुटेशन में हम आर्टिफिशियल लिम्स भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें ये भी डिपेंड करता हो कि आर्टिफिशियल दैट इज सम डिफरेंट टॉपिक, बट जस्ट आई वांट टू आस्क कि उसमें डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज करते हैं। तो अगर मटेरियल हम वेट बेयरिंग की बात करें, अबव नी एम्पुटेशन है तो उसको प्रॉपर वेट बेयरिंग के लिए पूरा चाहिए उसको लिम। तो अगर हम उसके लिए आयरन यूज कर रहे हैं या कुछ स्टील, मतलब तो उसमें भी तो रस्ट हो सकता है, उससे भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, जो पार्ट बॉडी में कांटेक्ट में आते हैं वो मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक्स होते हैं, और बाकी जो स्टील और कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास जो भी पार्ट्स होते हैं दे डोंट कम इन कांटेक्ट विद द बॉडी, तो उसको सेग्रेट किया जाता है। अब नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, सिलिकॉन बेस्ड आ गए हैं, बट दे आर ऑल मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन। सो स्टंप में जो एम्पुटेटेड पार्ट है, रेसिडुअल पार्ट जिसको कहते हैं, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट आता ही नहीं है, तो इसलिए उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। तो मतलब मटेरियल्स को हम उसी हिसाब से चूज करते हैं, तो उसमें प्रॉपर वेट बेयरिंग होती है, वेट बेयरिंग हो जाती है। अभी हम लोग जैसे फिक्स फ्रैक्चर हो गया, कॉन्ट्रैक्चर, हम लोग न्यूरोमा की बात करें, न्यूरोमा सर्जरी के बाद इट्स अ कॉमन प्रोसेस कि एट द एंड ऑफ द स्टंप इफ प्रॉपर लाइगेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स नहीं की गई हैं तो न्यूरोमा डेवलप हो जाता है। न्यूरोमा इज लाइक अ ब्लड क्लॉट एट द एंड ऑफ द स्टंप, जिसकी वजह से उसको टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस क्रिएशन होता है, और फैंटम लिम सेंसेशन जिसको कहते हैं कि लिम है नहीं बट उसको फील होता है कि लिम है और उसमें पेन हो रहा है। तो उसके लिए न्यूरोमा को एट द टाइम ऑफ सर्जरी, अगर आप स्लाइड देखेंगे तो नर्व को प्रॉपरली पुल करके लाइगेट करना चाहिए और बाद में उसको एक्स्ट्रा सेक्शन को रिमूव कर देना चाहिए, सो दैट न्यूरॉन डेवलप ही ना हो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब जैसे यहाँ पे नर्व्स की बात की, तो अगर सर नर्व्स हम कट कर देंगे तो फिर उनका सेंसेशंस का क्या होगा फिर? आपका एम्पुटेशन तो हो ही चुका है जी, तो एम्पुटेशन में नर्व, मसल्स, बोन, फाइबर्स सब एम्पुटेट हो गए हैं। अब लाइगेशन मतलब उसको हल्का सा पुल करके उसको सील कर देते हैं नर्व एंडिंग को, जिससे में कि ब्लड जो बाहर आ रहा है वो वहां पर क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि बाद में तो आपने स्टंप सील कर दिया है। तो इसलिए वो तो एम्पुटेशन हो ही चुका है, उसको प्रॉपरली लाइगेट करना कि उसमें न्यूरोमा फॉर्मेशन ना हो, जिसकी वजह से अननेसेसरी पेन होता है पेशेंट को, जिसमें अगेन साइकिल प्रोस्थेटिक फिटमेंट में प्रॉब्लम होती है जी। तो नर्व को पुल करके लाइगेट करना चाहिए, दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट लाइगेशन। नर्व से फैंटम सेंसेशंस आ जाते हैं। फैंटम सेंसेशन एज मैंने बताया कि उसमें लिम्ब की फीलिंग आती है, ट्रिंगलिंग सेंसेशन लाइक एंट मूविंग की फीलिंग आती है, तो वो एलिमिनेट करने के लिए आइडियली नर्व को लाइगेट करने के, स्ट्रेच करके, लाइगेट मतलब सील करना चाहिए और उसको एक्स्ट्रा सेक्शन को रिमूव कर देना चाहिए। तो सर जैसे अभी हमने पहले बात करी थी कि कुछ पैरामीटर्स जैसे 15 सेंटीमीटर आइडियल स्टेंट लेंथ की बात करते हैं, उसमें अब डिपेंड करता है, जैसे आपने बताया कि हाइट अगर ठीक हो तो बेटर रहता है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, होते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जैसे डॉर्फिज्म है या जो जेंटिज्म है, उस केस में ये जैसे स्पेशल केसेस हैं, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में बेसिकली ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि एम्पुटेशन या सर्जरी कोई भी नहीं करवाना चाहता। सो फॉर इंक्रीजिंग द हाइट, एम्पुटेशन इज नॉट एट ऑल प्रिस्क्राइब्ड ऑप्शन. It is there. It is a medical problem. It is there. So no, you do amputation and go for a longer artificial limb. That is this not recommended. But after amputation, again we come back to a topic of amputation. It is very important that we file the bony end at the time of surgery. If you can see the slide, this is a proper slide of a proper the bone end is properly filed, so you have a round end. There is another x-ray, next slide, it shows the bone is not properly filed. You can see the tip of the bone which is pointed out. So because of this, it can damage the skin from inside, resulting in creation of wound from inside. As you said कि after wearing an artificial limb बाहर से भी scar हो सकता है, but if you have a bone which is very close to the skin, वो अंदर से भी scar होके skin को ऐसे damage कर देता है. But ideally you should have a proper padded and good musculature stump as shown in the photograph.
तो इसका मतलब सारे पैरामीटर्स बिफोर प्री ऑपरेटिव सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव प्रिकॉशंस या पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या केयर लेनी चाहिए. वी विल शॉर्टली डिस्कस दैट आल्सो. लाइक बिफोर प्लानिंग a surgery, that is pre-operative, what we can say is planning a surgery. So the family has to be educated first ki okay, this is what's going to happen, that is the segment is going to be removed. So the family has to be prepared for that. Then you have to have preparation, you have to have warm water for taking bath. So that warm water indicates is like all the infected parts get washed off, because the high temperature इन्फेक्शन नहीं जनरेट हो पाता. तो उसको वॉशिंग के लिए वो होना चाहिए. पेरिनल एक कवर आता है स्टम्प को कवर करने के लिए, तो वो अवेलेबल होना चाहिए. द पेशेंट शुड बी रेडी फॉर जनरल एनेस्थीसिया, मींस इट शुड नॉट बी वीक इनफ. कई बार डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको जनरल सर्जरी रिकमेंड नहीं करते कि अभी इसका डायबिटीज अंडर कंट्रोल नहीं है, तो वी कैन नॉट गो फॉर जनरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया. तो पेशेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो. And his hemoglobin level should be at least 10 to 11% to sustain surgery. जो भी properties हैं वो भी उनकी normal होनी चाहिए. Sustain the anesthesia, he has to have a good hemoglobin level also. And you have the operative treatments are there, techniques are there to get the right. This everything we are talking about is to get the ideal stump for better prosthetic fitting. Again, come back to this first slide. पहले था लाइफ सेविंग, अब इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ कि ही शुड आफ्टर सर्जरी शुड बी एबल टू गो बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ ड्यूरेशन. एंड पोस्ट ऑपरेटिव अगेन, प्री ऑपरेटिव हो गया, देन ऑपरेशन डन, नाउ फाइन डन, इट्स नॉट द एंड. डॉक्टर का एंड नहीं हुआ, उसके लिए ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए. मीन्स आफ्टर ऑपरेशन इट्स एक्चुअली अ वुंड, सो यू शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेसिंग एंड प्रॉपर क्रेप बैंडेजिंग, बिकॉज ऑलवेज अ टेंडेंसी आफ्टर amputation that the blood flows takes place fine, but the return of the blood is not proper. So you have to have a proper crepe bandage. Means you have to have an elasticated bandage which gives we call it venous return. Means the blood is going inside, but has not enough pressure initially to return, so you have crepe bandaging. If you don't put crepe bandaging, you end up having swelling at the end of the stump. क्योंकि blood flow proper नहीं हो पाएगा. And then patient have a tendency of putting a pillow under the stump, which is because it is very comforting, but ideally it should be avoided. Develops contractions, exactly. Then drain, there is after surgery to prevent neuroma, they put a drain pipe, so that all the extra blood after injury which is collected inside gets drained outside, that no neuroma gets collected at the end of the stump. So there is a drain pipe which is removed afterwards. And then जैसे सर आपने बताया प्री ऑपरेटिव ऑपरेशंस हो गए, मतलब ऑपरेशन जिसका हम एम्पुटेशन करना चाह रहे हैं, उसके पहले का और उसके बाद का, उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सर इसमें मतलब जैसे आपने बताया डॉक्टर्स क्या क्या देखते हैं, इसमें मतलब उनकी टीम में कौन कौन इंक्लूडेड होता है? उसमें टीम में एनेस्थेटिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, डाइटिशियन इन्वॉल्व होता है, एक्सरसाइज के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट एज आई सेड वो इन्वॉल्व होता है, एंड नर्सेज इन्वॉल्व होती हैं कि ओके एम्पुटेशन, फ्यूअर प्लान एम्पुटेशन, फ्यूअर बिकॉज ऑफ ट्रोमा. तो प्लान एम्पुटेशन में ओके फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज बता रखी है, पहले से शुरू कर दी उसने, क्योंकि एम्पुटेशन के बाद भी वो एक्सरसाइज करनी है. डाइटिशियन ने उसका डाइट चार्ट बना दिया कि अगर डायबिटिक है तो उसके हिसाब से शुगर लेवल या वॉट एवर इंक्रीज ना हो जाए एट द टाइम ऑफ सर्जरी, क्योंकि सर्जरी की प्लान है तो डेट डिसाइडेड है. तो डाइटिशियन ने वो ऑक्यूपेशन थेरेपी ने डिसाइड कर दिया कि ओके सर्जरी के बाद उसको अपने प्रोफेशन में जाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज की जरूरत होगी, या सर्जरी के बाद वो क्या क्या एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, तो वो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट डिसाइड करता है. ऑर्थोपेडिक डॉक्टर तो सर्जरी करना है तो उसको अपना ऑपरेशन का डेट एंड टाइम डिसाइड करना है कि किस टाइम में उसको ऑपरेशन करना है. एंड फिर नर्सेज हो गए कि सब प्रॉपर टूल्स, बैंडेजिंग और सर्जिकल इक्विपमेंट सब रेडीली अवेलेबल. एनेस्थेसिस्ट हो गया कि जनरल एनेस्थीसिया देना है या स्पाइनल देना है, पेशेंट इज रेडी फॉर दैट और नॉट. तो ये सब टीम इन्वॉल्व है ऑपरेशन में. तो ये प्री और पोस्ट दोनों के टाइम में इन्वॉल्व रहते हैं? हाँ, पोस्ट के टाइम में भी फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डाइटिशियन की बिकॉज ऑफ एम्पुटेशन हो गया तो वीकनेस आ जाती है, तो प्रॉपर डाइट इज इम्पॉर्टेंट.
अब एम्पुटेशन हो गया और डायबिटीज साथ में इन्वॉल्व है, तो फिर अगेन डाइट का केयर की इन्फेक्शन ना फैल जाए, बिकॉज इट्स एक्चुअली एन ओपन करके इसको क्लोज किया गया है, तो इन्फेक्शन ना फैल जाए, तो डाइट कंट्रोल एंड इन्फेक्शन स्प्रेड का कंट्रोल वो जरूरी है। तो प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए जी। एज अ रेगुलर इंटरवल, क्योंकि इनिशियली ऊजिंग वुंड है तो ऊजिंग तो होती रहेगी, और ऊजिंग रह जाए वहाँ पर तो इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जनरेशन। तो प्रॉपर क्लिनिक नर्स का काम है कि प्रॉपरली क्लीनिंग चलती रहे, और फिर क्रेप बैंडेजिंग होती रहे, अदरवाइज स्वेलिंग हो जाएगा। सॉफ्ट पैडिंग और हार्ड पैडिंग दो डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग आती हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव में ड्रेसिंग में you have crepe bandaging if the bone, if you can see the slide, if the bone is too prominent at there, so you have to have a soft padding before doing any dressing. So ये सब important आ जाता है। You can go for a rigid POP dressing also, you can go for crepe banding dressing also, you can go for stump shrinker also. वो different types के आते हैं। All this to prevent stump edema. Stump edema means swelling of the stump. कि स्वेलिंग बिल्कुल भी ना हो, तो इमीडिएट टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है कि इस टाइम तक हार्ड ड्रेसिंग, देन 5 to 6 days पोस्ट सर्जरी यू गो फॉर क्रेप बैंडेजिंग एंड मे बी इनिशियली माइल्ड वॉकिंग ऑल्सो, सो दैट उसको फाइनली एम्बुलेशन के लिए तो जाना ही है, तो वो करना है। मतलब पूरा पैरामीटर्स हमें फॉलो करके हैं, और जितने भी फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या दे आर गिविंग बेनिफिट्स और दे आर हार्मफुल, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें ये सब प्रोसेस फॉलो करना होता है। देन पोस्ट ऑपरेटिव स्टम्प श्रिंकर आ गया, यू हैव अ स्टम्प श्रिंकर की टू गेट द राइट प्रेशर एंड इट आल्सो इट्स इलास्टिकेटेड टू गिव्स यू एक्सरसाइज आल्सो। देन पोस्ट ऑपरेटिव में अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, न्यूमेटिक वॉकर आता है, देन हाइड्रोलिक उसको थेरेपी के लिए एक्सरसाइज के लिए मसाजर आता है। इट बिल्ड्स अप द एम्पुटी फॉर फिटमेंट ऑफ एन आर्टिफिशियल लिम्ब। एम्पुटी को बिल्डअप करता है कि फाइनली यू हैव टू वेयर एन आर्टिफिशियल लिम्ब, तो फाइनली मोबाइल दोबारा से होना है, या बहुत टाइम से बेड रिडन हो गया तो प्रेशर सोर डेवलप हो सकते हैं जी। तो वो सब प्रिवेंशन के लिए अर्ली मोबिलिटी इज ऑलवेज बेटर, बट डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन ऑल्सो। डायबिटीज है तो इन्फेक्शन का ख्याल करते हुए, जैसे पहले डिस्कस किया था, तो आगे करना पड़ता है। अगेन छोटा सा टॉपिक है एम्पुटेशन चिल्ड्रंस के लिए, इट शुड बी अवॉइडेड, जितना डिले कर दें, क्योंकि क्या होता है कि एम्पुटेशन चिल्ड्रन में कर दिया बट बोन इज ग्रोइंग, तो बोन ग्रो कर जाती है, तो इट शुड बी अवॉइडेड, डिले कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम डिले करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस अगेन कॉज में आ जाते हैं ना, कि अगर कॉज इन्फेक्शन है तो करना है इमीडिएटली, बिकॉज वो लाइफ सेविंग है, बट अगर कंजेनाइटल है तो उसको डिले कर देना चाहिए। तो अगेन वो सब साइकिल, वो डिफरेंट डिविजन्स हैं कि अगर ये कॉज है तो हाँ इसको डिले कर सकते हैं तो कर दो, और अगर करना भी है तो आइडियली टू गो फॉर अ नी डिसआर्टिकुलेशन, डिसआर्टिकुलेशन करो, क्योंकि डिसआर्टिकुलेशन में बोन नहीं ग्रो करेगी, बिकॉज बोन पूरी आपने ले रखी है, इसलिए उसको नहीं करेगी। इस्चेमिक में इट इज मोस्ट लाइकली टू हील बेटर, हील हो जाए उसका केयर लेना पड़ता है। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर वाला होता है जी। तो बेस्ट इज कि इन्फेक्शन पूरा निकल गया तब तक उसको ओपन रखना है, देखते रहना है कि सारा इन्फेक्शन निकल गया, एंड उसके बाद ही उसको क्लोज करके देखना है। फिर हम उसमें आ जाते हैं कि ओपन वुंड एंड क्लोज वुंड से अगेन कि एम्पुटेशन इन्फेक्शन की वजह से है तो उसको अराउंड 4-5 days ओपन वुंड रखा जाता है स्टडी पर्पस के लिए, कि सारा इन्फेक्शन क्लीन अप हो गया एंड देन उसको फाइनली क्लोज कर दिया। फिर ड्रेन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्टेड स्टम्प में, कि सारा इन्फेक्शन जो ब्लड फाइनली प्योर ब्लड आ रहा है वो इन्फेक्टेड को क्लीन करता हुआ ड्रेन पाइप से रिमूव कर देता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ एम्पुटेशन, कि कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम वी गो फॉर इज अ पार्शियल फुट, 4 foot एम्पुटेशन जिसको कहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर बॉयड्स बहुत फेमस हुए थे, साइम्स एम्पुटेशन 4 foot एम्पुटेशन, जिसको मेटाटार्सल हेड से रिमूव कर दिया जाता है। गुड पार्ट अबाउट दिस एम्पुटेशन इज कि यू कैन वॉक बेयर फुट ऑल्सो, एम्पुटेशन हो गया बट विदाउट एनी अप्लायंसेज यू कैन स्टिल वॉक बेयर फुट। तो उसमें सर सेंसेशंस रहती हैं? पार्टली इट इज देयर, इफ द सोल इज इंटैक्ट तो सेंसेशंस रहती हैं। एंटीरियर पार्ट जहाँ स्कार होगा वहाँ सेंसेशंस नहीं होंगे, बट अदरवाइज
पूरी सेंसेशन टाइट रहता क्योंकि है, अगर सेंसेशंस नहीं होंगी एंड द पर्सन एंड द इंडिविजुअल इज वॉकिंग बेयरफुट तो डैमेज हो होने के सकता है। चांसेस हैं, एंड डैमेज हो जाता है एंड पेशेंट डजंट कम टू नो कि उसका डैमेज हो गया। जी तो इसलिए इन्फेक्टेड विथ अगेन 4 फुट एम्पुटेशन केयरफुल रहना पड़ता है। डायबिटीज विथ 4 फुट एम्पुटेशन, नॉर्मल नॉन इस्केमिक एम्पुटेशन 4 फुट किया, क्रश इंजरी की वजह से हो गया था, तो उसमें इतना केयरफुल होने की जरूरत नहीं होती। उससे ऊपर का लेवल आता है साइम्स एम्पुटेशन। साइम्स मीन्स इट इज लाइक एन एंकल डिसआर्टिकुलेशन। बेसिकली आइडियली इज टू गो फॉर अ गुड डिस्टल एंड पैडिंग, कि हील का पैडिंग आपने डिस्टल एंड में लगा दिया। द बैड पार्ट अबाउट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन इज लाइक प्रोस्थेटिक फिटमेंट रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज यू गेट अ वेरी लिमिटेड ऑप्शन, एज हमने पहले डिस्कस भी किया था कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन रह जाते हैं हमारे पास प्रोस्थेटिक फिटमेंट करने के लिए। बट एडवांटेज क्या है, यू गेट अ लॉन्ग लीवर आर्म, तो पेशेंट का कंट्रोल बहुत बेटर हो जाता है। एंड देन यू हैव एंड वेट बेयरिंग स्टम्प विदाउट एनी आर्टिफिशियल लिम्ब, पेशेंट अपने आप घर में चल सकता है। सर जैसे हम बात करें एम्प्यूटेशंस की और फिर उसके बाद हमने सर्जरी हो गई एम्प्यूटेशन और उसके बाद हमने आर्टिफिशियल लिम्ब दे दिया, तो इसमें रेंज ऑफ मोशन जो है हर जॉइंट्स पे, मतलब जो कंसर्न जो हमारा पार्ट है, जैसे लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें तो उस पर कितना इफेक्ट हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट कि रेंज ऑफ मोशन फुल रहे। ये जो नेचुरल रेंज ऑफ मोशन 30 डिग्रीज या 50 डिग्रीज है वो फुल रहे। वही हम कॉन्ट्रैक्चर की बात कर रहे थे कि अगर रेंज ऑफ मोशन प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी शुरू नहीं की एंड पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी शुरू नहीं की एंड पेशेंट इज नॉट एजुकेटेड कि इसको कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना है, स्ट्रेच करते रहना है, तो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। तो रेंज ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्चर। आइडियली फॉर बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपका नेचुरल होता तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन चाहते। सेम चीज आपका आर्टिफिशियल है, यू वांट बेटर फंक्शन के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन। अब जैसे अब नी सर्जरी हुई है तो उसको जो हमने लिम्ब प्रोवाइड किया है, अगर हम नी एक्सटेंशन या फ्लेक्शन की बात करें तो उसमें फिर वो आपका आ गया कंपोनेंट्री में। तो कंपोनेंट में कितना नी फ्लेक्शन पॉसिबल है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू उस नी जॉइंट में कितना फ्लेक्शन रिक्वायरमेंट होता है। नॉर्मल नी फ्लेक्शन इज अराउंड 150 डिग्रीज, तो आर्टिफिशियल नी भी अराउंड 140 डिग्रीज नी फ्लेक्शन देते हैं, नियर अबाउट द सेम देते हैं, सेम क्राइटेरिया देते हैं। तो गेट द नाउ वी हैव टू गिव हिम बैक द नेचुरल लाइफ विद एन आर्टिफिशियल नी जॉइंट। तो उसमें सेम पैरामीटर्स इंजीनियर्स ने वही डिजाइन किए हैं उसको कि वो फुलफिल करते हैं नेचुरल मूवमेंट्स को। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जो रेंज हाँ। हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम इंडिविजुअल्स को वो प्रोवाइड करनी। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं एम्पुटेशन एंड ऑर्थोपेडिक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्थोपेडिक कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, कैसे हमें उनके प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, प्री ऑपरेटिव केयर कैसे होती है, उसमें उसकी टीम में कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं प्रोफेशनल्स, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में हमें क्या क्या केयर करने चाहिए। इसकी बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। कोई मुश्किल हो, दूर मंजिल हो, never stops us from dreaming. हारता है वो, हार माने जो, we are what we believe in. हम धरती को अंबर से मिला दे, हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे, हम छू ले सितारों को, touch the sky. आशा के पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly. Our vision at the Rehabilitation Council of India is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate
training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. अच्छा ठीक है. वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन, जहाँ हम अपने एक्सपर्ट के साथ आज के टॉपिक की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे और उनके साथ डिटेल्ड देख रहे थे कि हमारे एक्सपर्ट जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि एम्पुटेशन में क्या होता है, कैसे प्रोसेस फॉलो करना चाहिए. आई होप व्यूअर्स क्वेश्चंस पूछेंगे और हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे टाइम टू टाइम फ्लैश होता रहता है. आइए हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करते हैं. सर, जैसे ब्रेक में जाने से पहले हमने ये सब डिस्कस किया, सारे कंपोनेंट्स, पैरामीटर्स. जैसे बेसिकली हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी पे चल रहा है, तो अगर हम जैसे अबव नी और बिलो नी की हम बात कर रहे थे, तो इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्टली टू अंडरस्टैंड इज कि सबसे ज़्यादा बिलो नी एम्पुटेशन होते हैं कंपेयर टू अबव नी एम्पुटेशन. तो बेसिकली बिलो नी एम्पुटेशन की दो बेसिक टेक्निक्स होती हैं. एक तो लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप की टेक्निक होती है जी, और एक जो रिसेंट डेवलप डॉक्टर रॉबिन्सन है यूके में, उन्होंने डेवलप की है इज अ स्क्यू फ्लैप टेक्निक. तो लॉन्ग पोस्टीरियर टेक्निक एज यू कैन सी इन द स्लाइड इज अ लॉन्ग पोस्टीरियर स्कार इज कट एंड जिसको ओवरलैप करके इंटीरियरली प्लेस किया जाता है. बट देयर इज अ स्मॉल डिसएडवांटेज इन दिस बिकॉज द स्कार comes very close to the distal end of the bone, but you get a good conical shaped stump कि लॉन्ग पोस्टीरियर स्किन फ्लैप लेके उसको एंटीरियरली सूचर कर दिया एंड उसको स्कार एंटीरियर प्लेस कर दिया. बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, दो डॉग ईयर्स जिसको कहते हैं, एज यू कैन सी इन द स्लाइड ऑफ द फोटोग्राफ, कि दो डॉग ईयर्स निकल आते हैं साइड ऑफ द स्टम्प में, बिकॉज जब आप फोल्ड करेंगे तो साइड से दो डॉग ईयर्स निकल आते हैं. एंड सेकेंडरी द बोनी एंड इफ यू कैन सी इन द स्लाइड एकदम आगे प्रोमिनेंट हो जाता है. जो हमारा पहला डिस्कशन चल रहा था कि प्रोस्थेटिक फिटमेंट के बाद भी स्कार हो सकता है, बिकॉज बोन इतनी क्लोज हो जाती है स्किन से कि यानी हार्ड सॉकेट जो बनेगा थोड़ा कुशनिंग के साथ हार्ड तो बनेगा ही, तो उसमें हिट करने से स्कार फॉर्मेशन हो सकती है. इन सेकेंडरी द स्क्यू फ्लैप टेक्निक, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, डायगोनल स्कार बनाया जाता है एंड उसको सूचर किया जाता है. तो स्लाइड में क्लियरली इंडिकेट करता है कि इट इज नॉट क्लोज टू द टिबिया बोन ऑल्सो एंड इट इज नॉट क्लोज टू द फिबुला बोन ऑल्सो. तो टिबिया बोन में भी सॉफ्ट पैडिंग है और एंड ऑफ द बोन में भी सॉफ्ट पैडिंग है. तो ये एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन या स्कार फॉर्मेशन आर्टिफिशियल लिम्ब की फिटमेंट के बाद होने नहीं देता. सर, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखे थे डिफरेंट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ये सब हो सकता है. अब ट्रॉमा में एक जैसे जनरली देखते हैं कि जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कॉज, उसमें क्या मतलब इन्फेक्शन होता है या क्या चीज़ होती है कि एम्पुटेशन की जरूरत है? बेसिकली इन्फेक्शन, एनी ओपन साइट में वुंड होना इज कॉज ऑफ इन्फेक्शन. एंड ब्लास्ट में या एक्सीडेंट में व्हेन इट इज टोटली क्रश्ड मींस ऊपर की सुपरफिशियल स्किन जो सब इनसाइड स्ट्रक्चर को सेव करके रखती है वो ओपन हो गई है. एंड रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट या ब्लास्ट एक्सीडेंट में इन्फेक्शन, बिकॉज रोड में एक्सीडेंट हुआ या ब्लास्ट में इन्फेक्शन या लिम्ब ब्लास्ट ही हो गया टोटल, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट उससे सेम रिलेशन इसमें आता है कि किस टाइप की सर्जरी करनी चाहिए. आइडियली सब केसेस में स्क्यू फ्लैप टेक्निक सर्जरी करनी चाहिए, बिकॉज ये आपको स्टम्प एक तो प्रॉपर शेप स्टम्प देती है टू गेट, अगेन इट्स ऑल रिलेटेड टू गेट अ आइडियल प्रोस्थेटिक फिटमेंट. ब्लास्ट में कुछ जैसे आर्मी पेशेंट्स का ब्लास्ट होता है तो इट्स लाइक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, तो जो उसके स्प्लिंटर्स होते हैं वो बॉडी में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. बट दे आर सो एट हाई टेम्परेचर कि वो स्टरलाइज हो जाते हैं
तो कुछ और पेशेंट्स में हमने नोटिस किया कि स्प्लिंटर्स को निकालना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको अंदर ही छोड़ देते हैं, बट बिकॉज हाई टेम्परेचर की वजह से स्टरलाइज हो गए हैं, वो इन्फेक्शन नहीं होने देते। सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, डिपेंड करता है इन्फेक्शन वैसे केसेस में, स्टार्टिंग केसेस में, जैसे आपने बोला ट्रॉमेटिक केसेस में, स्टार्टिंग केस में जहाँ पे ट्रॉमा हुआ वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस उतने नहीं होते। जैसे एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हो गया, इतनी क्रश इंजरी है, लेटर अगर उसको थोड़ा डिले हो गया तब इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है तो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है, वहाँ पे क्या होता है, लाइफ सेविंग पहले हम सब शुरू से देखते हैं। पहला हमारा एस्पेक्ट होता है कि जितना ज़्यादा हो स्टम्प बचा सकें। लेटर ऑन जैसे ही अगर प्लान अगर हमको लगता है कि इन्फेक्शन नहीं हो रहा तो हम उसको थोड़ा डिले करते हैं। प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिस्ट से भी हम लोग एडवाइस करते हैं, एक टीम होती है बेसिकली रिहैबिलिटेशन के लिए, तो उस टीम को हम लोग बुलाते हैं, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी क्लिनिकल मीटिंग के अंदर कि हम कितना बचा सकते हैं, सो दैट ये प्रॉपर वे में आगे रिहैबिलिटेट हो जाए। तो जब एक बार हमारा डिस्कशन हो जाता है, फिर हम लोग सिस्टम भी शुरू में ही सोच लेते हैं कि इसको हम क्या फिट करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसका एम्पुटेशन कर पाते हैं। मतलब इट डिपेंड्स कि कितनी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है या जो भी लेवल है इंजरी का उसके हिसाब से देखते हैं। तो सर जैसे आप स्क्यू फ्लैप टेक्निक के बारे में बता रहे थे, तो इसका मतलब क्या होता है इस टेक्निक में? स्क्यू फ्लैप टेक्निक में 2 फ्लैप्स बनाए जाते हैं। एक तो लास्ट टाइम हमने बताया था लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप, तो उसमें सिर्फ सिंगल फ्लैप होता है। स्क्यू फ्लैप टेक्निक में एज ड्राइंग इंडिकेट कि 2 फ्लैप बनाए जाते हैं टिबिया और फिबुला बोन के साइड में, सो दैट जब क्लोजर होके निकल के आए तो कोई डॉग ईयर फॉर्मेशन नहीं हो और किसी भी बोन के पास कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं हो, एंड फाइनली द स्टम्प एकदम गुड पैडेड एंड डिस्लेंट, नो स्कार एट द बोनी एंड एंड सॉफ्ट पैडिंग एट द बोनी एंड निकल के आए, तो वो स्क्यू फ्लैप टेक्निक फॉलो की जाती है, जिसमें आप देखेंगे बायलैटरल पेशेंट जिसका एम्पुटेशन हुआ है, एक तरफ आपका हुआ है लॉन्ग फ्लैप टेक्निक जिसमें आप बोनी एंड देख रहे हैं, और एक तरफ स्क्यू फ्लैप टेक्निक है। तो स्कार लाइन आप देखेंगे तो ये स्कार लाइन एकदम साइडवेज जा रही है और इसमें स्कार लाइन यहाँ पीछे आ रही है, बोन के एकदम पास में है। तो ये फर्क होता है स्क्यू फ्लैप एंड लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप टेक्निक में। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट कि फाइलिंग ऑफ द बोन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि काफ मसल्स को टिबिया बोन के साथ बेवल किया जाए। बेवल इन द सेंस द फाइलिंग ऑफ द बोन, कि पॉइंटेड एंड ना हो, स्मूथ एंड हो, सो दैट अंदर से फ्रॉम इनसाइड द टिश्यू डजंट गेट डैमेज्ड। एंड फाइनली पहले भी दिखाया था एक्सरे, यू गेट अ गुड स्टम्प फॉर्मेशन कि एकदम क्लियर आपको राउंडेड स्टम्प मिले, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को फाइनली आर्टिफिशियल लिम्ब पहनने में। यही स्क्यू फ्लैप टेक्निक, इसको आजकल ज़्यादातर ऑपरेशन डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। एंड इफ यू कैन सी द स्केच कि इसमें लॉन्ग पोस्टीरियर वो मसल टू मसल किया, फाइबर टू फाइबर किया, एंड फाइनली बोन के ऊपर दिस एरिया यू गेट अ वेरी गुड सॉफ्ट पैडिंग, जो फाइनली हम लोग एम एक ही लिए कर रहे हैं कि अब तो वॉट एवर रीजन एम्पुटेशन हो गया है, बट टू इम्प्रूव द लाइफ, कि उसको बार बार ये प्रॉब्लम ना हो, उसका स्टम्प कंडीशन बेटर हो, उसके लिए द लाइफ बेटर, कि उसके लिए फिजियोथेरेपी करता रहे तो उसका स्टम्प मैच्योर रहेगा, फुल रेंज ऑफ मोशन रहेगा, बल्बस एंड डेवलप नहीं होगा, स्कार फॉर्मेशन नहीं होगा, उसके लिए फाइनली एंड प्रोडक्ट अच्छा रहे। एक छोटा सा टेक्निक नी डिसऑर्डर में भी आता है, जिसमें टाइप ऑफ स्क्यू फ्लैपी कहते हैं उसको, जिसमें वी शेप का स्कार बनाया जाता है एज शोन इन द स्लाइड, एंड उसको बोन को कट सेक्शन करके फाइनली सूचर किया जाता है। बोन को 1/2 इंच कट करके उसको सूचर किया जाता है, तो टर्मिनल एंड में स्कार आता है, पोस्टीरियर नहीं आता, विच इज हील स्ट्राइक के टाइम में कोई स्ट्रेच नहीं देता, एंड एंड वेट बेरिंग बनाता है नी डिस आर्टिकुलेशन, तो प्रॉपर फंक्शन पेशेंट को मिल जाता है आफ्टर डूइंग दिस सर्जरी। सर जैसे ये आपने बताया, अब जैसे आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि ऑफन लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं या उन्हें किन बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑफन लोग स्टम्प शेप मेंटेन करने का मिस्टेक करते हैं कि ग्राफ्ट लगा दिया, विच आई सेड कि ग्राफ्ट इज नॉट गुड फॉर द स्टम्प, कि अगर 2 इंच और छोटा कर देते हैं, विच शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट उसमें स्कार लगा दिया है, तो स्कार में ऑलवेज चांसेस होते हैं उसमें ओजिंग आउट होने के लिए, क्योंकि वो मोबाइल नहीं होता। एक वो गलती करते हैं, एक बहुत शॉर्ट बना देते हैं। बहुत शॉर्ट में क्या होता है, उन्होंने पेशेंट को तो कह दिया कि उन्होंने नी जॉइंट सेव कर लिया है,
बट फाइनली प्रोस्थेटिक फिटमेंट में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि एरिया छोटा है, वेट पूरा है पेशेंट का 60-70 केजीज, तो इस छोटे से एरिया में ज़्यादा वेट आता है। उससे बेटर है कि आप एक ग्रेड हायर नी के अबव एम्पुटेशन कर दीजिए। फिर पेशेंट को एजुकेट नहीं करते कि मस्कुलेचर कांस्टेंट मूव करते रहो, उसकी मसाज करते रहो, एंडीमा नहीं आने दो। पेशेंट बहुत टाइम तक हैंगिंग पोजीशन में रहता है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप कर लेता है एंड फाइनली प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए जब तक आता है हमारे पास तब तक उसको डेवलप हो चुका है एंड उसमें फिटमेंट में प्रॉब्लम आ जाते हैं। लोग अपने डाइट का कंट्रोल नहीं करते, हाइजीन के बारे में ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ड्रेसिंग के बारे में ट्रेनिंग। तो बेसिकली डॉक्टर को पेशेंट को एजुकेट करना है फर्स्टली कि आइडियल स्टम्प मेंटेन करने के लिए फॉर बेटर प्रोस्थेटिक फिटमेंट। कई डॉक्टर्स को हार्डवेयर, जैसे हम नी जॉइंट की बात कर रहे थे, एंकल जॉइंट की बात कर, नहीं पता कि ठीक है कि 15 सेंटीमीटर क्लियरेंस देने से ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे ऑप्शंस नी जॉइंट के वो इतने छोड़ते नहीं है, वो लॉन्ग कर दिया। जब उनके पास एक ऑप्शन है उस टाइम में कि 1-2 इंच छोटा कर दें तो पेशेंट के लिए ऑप्शन बढ़ जाएंगे। वो उनको क्योंकि हार्डवेयर के बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो उसको कंसिडरेशन नहीं करते बेसिकली। तो सर जैसे ये आपने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था ऑर्थोपेडिक एंड एम्पुटेशन सर्जरी मेनली इन लोअर लिम्स, तो आपने हमारे व्यूअर्स को बताया अपने सेशन में कि एम्पुटेशन का क्या मतलब होता है, उसके डिफरेंट कॉजेज़ कैसे हो सकते हैं और हमें अगर वो कॉजेज़ हो गए हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है, हमें ट्रीटमेंट लेते टाइम प्री ऑपरेटिव सर्जिकल केयर कैसे लेनी है और फिर ड्यूरिंग द टाइम एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे लेनी है। साथ के साथ हमने देखा कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो इस तरह का कि ये जो हमारा डिस्कशन था, आई होप व्यूअर्स ने काफ़ी इन्फॉर्मेशंस ली होंगी ताकि वो आगे ध्यान रख सकें इसके बारे में। थैंक यू सो मच सर जो आपने इन्फॉर्मेशंस दी हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में। दिस इज़ टाइम फॉर द क्लोजिंग ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।